ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಯ್ಯಂ ಪ್ರಾರ್ಥನಕರೇ, ಅತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದು ದೇವರೇ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂಡಿರುವಂತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇವರೇ, ನೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಬೇಕೆಂತಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯ ಹಮ್ ಸಬ್ ಮಿಲ್ಕರ್ ಸಾಂಗ್ ನಂಬರ್ 177 127ನೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಆರಾಧನಾ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನ ವಂದಿತ ನಾಮವನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಆಡಿ ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನ ವಂದಿತ ನಾಮವನ್ನೇ ಕುಂದಾದ ಕೀರ್ತಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಡುತ್ತ ಬಂದು ಭಜಿಸಬಯ್ಯ. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ ನರಳುಳುಳೈ ಪತಿಯೇ ನೀ ಪರಿಮಳ ವಾಸನಿಯೇ. ನರಳುಳುಳೈ ಪತಿಯೇ ನೀ ಪರಿಮಳ ವಾಸನಿಯೇ. ಧರಣಿಯ ಭಕ್ತರ ಸ್ಮರಣಿಗೆ ಯೋಗ್ಯನು ನಿರುತವು ಸದ್ಗುರುವೇ. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ ಪರಮದಯಾಕರನೇ ನೀ ಧರಣಿಯ ಭಾಸ್ಕರನೇ. ಪರಮದಯಾಕರನೇ ನೀ ಧರಣಿಯ ಭಾಸ್ಕರನೇ. ನರರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ವರಗಳು ಮೂಲವು ಕರುಣಿಯ ಸಾಗರನೇ. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ ಅರಸನು ನೀ ನಮಗೆ ಅತಿ ಬರದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆಗೆ. ಅರಸನು ನೀ ನಮಗೆ ಅತಿ ಬರದಲ್ಲಿ ನೀ ನಡೆಗೆ. ಸ್ಮರಣೀಯ ಮಾಡುತ್ತ ಬರುವೆವು ಕರ್ತನೆ ಅರಸೆ ಮನ ಧರಿಸೆ. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ ನಿನ್ನ ವಂದಿತ ನಾಮವನೇ ಕುಂದಾದ ಕೀರ್ತಿಸಿ ಎಂದಿಗೂ ಆಡುತ್ತ ಬಾಂದು ಭಜಿಸೆವೆಯ. ಸುಂದರ ರಕ್ಷಕನೇ. सबसे पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं, देवर नाम के स्तोत्रवागले कि आज ये सुंदर अवसर उन्हें हमें दी है ताकि हम सब मिलकर उसके वचनों को मनन करने के लिए आज के हमारे आत्मिक आहार के जो वचन चुने हैं वो रोमा उसके 5वें अध्याय 1 से 11, रोमा दवರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 5ನೇ ಸಂಧಿ 1ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನ, ರೋಮನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5 ವರ್ಸ್ 1 to 11. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರು ಆಕಾಶದಿಂದ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಕಾಪಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ
ಕೊರತೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। परमेश्वर हमारे जीवन में मध्यस्थ होकर हमें अनुदिन जीवन में चलाने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, क्योंकि उसके वचन कहता है भजन संहिता उसके 33वें अध्याय के 13 वचन में, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है करके कहता है। और यह भी कहता है भजन संहिता 121 के अध्याय के 4 वचन में, सुन इज़राइल के रक्षक ना हुकेगा ना सोएगा, ದೇವರು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಥದ್ದಾಗಿದೆ, ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೇನು ಮಾಡುತ್ತಂದರೆ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ हमारे जीवन में मध्यस्थ होकर ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ದೇವರು ಆ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। एक छोटी सी कहानी हम सुनेंगे। कहानी ये है, एक व्यक्ति जब रास्ते में गुजर रहा था और अचानक उसकी जेब से 5 रुपया का एक सिक्का गिर जाता है करके हम देखते हैं। और जैसे वो सिक्का गिरता है वहाँ पर एक छोटा सा लड़का रहता है, वो दौड़कर उस सिक्के को लेता है और लेकर वापस देने के लिए उस व्यक्ति के पास आ जाता है। ये देखकर वो व्यक्ति क्या करता है, वो सिक्का वापस उसे बोलता है तू ले जा करके उसे दे देता है। और लड़का बहुत ही खुशी से उस सिक्का को लेकर दौड़कर चिक्की बेचने वाला एक लेडी के पास जाकर उस स्त्री से वो 5 रुपए के 2 चिक्कू लेता है और वो खुशी से खाकर वो वापस अपने घर जाता है करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इस कहानी में हम ये देखते हैं उस बच्चे को भूख लगा था और भूख लगने के कारण ये था कि उसके पास पैसा नहीं था करके हम देखते हैं। इसीलिए जब पैसा उसे मिला वो गया, वो चिक्कू लिया, खाते खाते वो वापस चला गया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर उसकी भूख को मिटाने के लिए एक सिक्का जेब से गिराया करके हम देखते हैं। इस तरह से परमेश्वर ने कहीं न कहीं उस बेटे को पेट मध्यस्थ किया और उसको सहायता किया ताकि उसका पेट भर जाए करके। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर हमारे मध्यस्थ होता है। गॉड इंटरवेन इन आवर लाइव्स। ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು पूरैಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ। प्रभु हमारे जीवन में मध्यस्थ होते हुए हमारे जीवनों को वो आशीष करता है करके इस बात को हमें समझना बहुत ही ज़रूरत है। कभी हम ये ना सोचे कि परमेश्वर मेरी और देखता नहीं है, प्रभु मुझे ख्याल नहीं करता है, प्रभु मेरे बारे में चिंता नहीं करता है, प्रभु मेरे जीवन में मध्यस्थ नहीं करता। इस प्रकार से ना सोचते हुए आप पॉजिटिव सोचिए कि परमेश्वर की वचन हमें हिम्मत देता है कि वो सब मनुष्यों को निहारता है या देखता है करके। इसलिए प्रभु अपने जीवन प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारे अद्भुत कार्य करता है, जैसे उसने उनके विश्वासियों के जीवन में किया करके हम देखते हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर जब उनके बच्चे तकलीफ में थे, समस्याओं में थे, दिल से टूटे हुए थे, परमेश्वर उन्हें क्या किया, अमल में उनके जीवन में मध्यस्थ रहकर उन्होंने आशीष किए करके हम देखते हैं। सो पहला व्यक्ति के जीवन से देखते हैं कैसे परमेश्वर ने मध्यस्थी किया करके। पहला व्यक्ति अगर किसी का है तो वो है अब्राहम के जीवन में। ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। गॉड इंटरवेन इन द लाइफ ऑफ अब्राहम। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में मध्यस्थ होकर उन्हें आशीष किया करके हम देखते हैं। अब्राहम के बारे में बहुत सारे बातें लिखे गए हैं बाइबल में, अच्छे अच्छे बातें लिखे गए हैं करके हम देखते हैं। उन सारे अच्छे बातों में से 2 बातें बहुत ही मुख्य है। वो ये है कि रोमा उसके 4वें अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम जो है विश्वासियों का पिता कहलाया गया करके हम देखते हैं।
दूसरा हम देखते हैं याकूब के पत्र उसके दूसरे अध्याय के 23 वचन में परमेश्वर ने उसे अपना मित्र बनाया करके हम देखते हैं। ये दो बातें, ये दो टाइटल परमेश्वर ने अब्राहम को दिया करके हम देखते हैं। ಈ ಎರಡು ಟೈಟಲ್ಗಳು ಈ ಅಬ್ರಹಾಮಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ऐसा कौन सी बातें हैं ಅಂತ ಏನು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಏನು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಅಬ್ರಹಾಮನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು ಅಂತನ್ನುವಾಗ अब्राहम ने एक ही एक अच्छा उसके अंदर था, वो था वो प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया करके हम देखते हैं। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास किया करके हम देखते हैं। उस परमेश्वर विश्वास के जो सर्वोन्नत श्रेष्ठ परमेश्वर है, पूरे तन मन धन से उसने परमेश्वर पर प्रेम किया, उसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसने विश्वास रखा, इसलिए परमेश्वर ने उसे इतने अच्छे टाइटल देकर उन्हें आशीष किया करके हम देखते हैं। मेरे प्रियो, इतने कहते हुए इतने ही बातों से वहाँ पर हम रुक नहीं सकते, लेकिन परमेश्वर ने एक ऐसे समय आया अब्राहम के जीवन में, जो ऐसे समय परमेश्वर ने उसके जीवन में मध्यस्थ किया और उन्हें आशीष किया करके हम देखते हैं। और हम देखते हैं वो क्या समस्या था करके बोलो तो, जब परमेश्वर ने उसके एक ही एकमात्र संतान दिया ईसाक को दिया करके हम देखते हैं, और वही ईसाक को अब्राहम बहुत ही प्रेम करता था करके हम देखते हैं, अपने जी जान से प्रेम करता था करके हम देखते हैं। और वही परमेश्वर ने उसी ईसाक को वापस उसने बलि के रूप में मांगा करके हम देखते हैं। और ये बात सुनकर कहीं ना कहीं अब्राहम के मन में दिल टूट गया करके हम देखते हैं, वो बिखर गया करके हम देखते हैं। एक मानसिक रूप में वो कहीं ना कहीं वो टूट चुका होगा करके हम देखते हैं, लेकिन वो विश्वास करने वाला बेटा था करके हम देखते हैं अब्राहम। इसलिए परमेश्वर इच्छा को पूरा करना था, उसका एक विश्वास का जीवन था करके हम देखते हैं। इसलिए वो जिस स्थान पर परमेश्वर उसे बताया गया था, पहाड़ मोरिया के पहाड़ पर जाना पड़ा, और वो अपने बेटे को लेके जाता है और वहाँ पर उसे बलि देने के लिए सब कुछ तैयार करते, यहाँ तक अपने बेटे को भी उस मेज पर उसे सुला देता है करके हम देखते हैं। और जैसे वो सुलाते हैं और वो एक तलवार लेता है ताकि उसे वध करने के लिए, जैसे वो अपने हाथ उठाता है उसे वध करने के लिए, तब स्वर्ग से एक स्वर्गदूत का आवाज़ इस प्रकार से आकर उसे कहता है, क्या कहता है सुनिए, उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय के 11 वचन में, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, ए अब्राहम, ए अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तो उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपना पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रखा छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जैसे उसने हाथ बढ़ाया उसको वध करने के लिए, सांप को वध करने के लिए, बलि देने के लिए, परमेश्वर का दूत स्वर्ग से आवाज़ दिया, अब्राहम अब्राहम, तभी रोक दिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में ऐसे नाजुक स्थिति में मध्यस्थ होकर उसके बेटे के जीवन को बचाया करके हम देखते हैं। ದೇವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಿತ ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, ಎಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು। ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಗನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು। ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಹಳ ನೊಂದುಕೊಂಡಿರುವಂಥವನಾಗಿರಬಹುದು। ಅಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗನು ನನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನ ಏಕ ಕುಮಾರನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಸಾಕನನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಭಯಭಕ್ತಿಲಿದ್ದನಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದನಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಿಧೇತ್ವ ಮಗನಾಗಿದ್ದನಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದೇವರು ಪರಲೋಕದಿಂದ ತನ್ನ ದೂತರನ್ನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ
ಆತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತಂದರೆ मध्यस्थनागी नमनो आतु ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर हमारे जीवन में मध्यस्थ होकर हमें चला रहे हैं. अपने पर्सनल लाइफ में हर एक समस्याओं में आप गुजरते होंगे, आपके जीवन को वो संभाल रहे हैं, आपसे बातें कह रहे हैं, आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, सिखा रहे हैं. पिता परमेश्वर हम देखते हैं ದೇವರು ನಿನ್ನ टूटा हुआ हृदय को परमेश्वर कुछ कहता है. ಆತನ ಮಾತುಗಳು ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ, दावीदನ कीर्तनेಗಳು 34ನೇ संधि उसके 18वें वचन में पढ़ते हैं, टूटे हुए लोगों के समीप परमेश्वर रहता है करके हम देखते हैं और उन्हें बचाता है करके हम देखते हैं. देखिए भजन संहिता उसके 34वें अध्याय के 18वें वचन में इस बात को लिखा है. अब्राहम टूट चुका था करके हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग से देखते हुए उसको पास रहा और उसे बेटे के जान को बचाया. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ, कौन से कष्ट में, कौन से दुख में, कौन सी पीड़ा में, कौन से तंगे में आप गुजर रहे हैं, आपकी सारी चिंता को परमेश्वर जानता है. वो समय समय पर तुम्हारे जीवन में मध्यस्थ होकर तुम्हारे जीवनों को वो आशीष करते हुए परिपूर्ण करता है. ಅಬ್ರಹಾಮನು ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಜೀವಿತ ಕಾಪಾಡಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. दूसरी बात हम देखते हैं कि ದೇವರು ಯೂಸುಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆತನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन में मध्यस्थ होकर उन्हें आशीष किया करके हम देखते हैं. गॉड इंटरवेन इन द लाइफ ऑफ जोसेफ करके हम देखते हैं. बाइबल में 3 यूसुफ के बारे में लिखा गया है करके हम देखते हैं. पहला यूसुफ जो है जूना करार में लिखे गए हैं करके हम देखते हैं, जो याकूब का बेटा था करके हम देखते हैं. दूसरी बात हम देखते हैं कि मरियम का पति और यीशु मसीह का पिता यूसुफ था करके हम देखते हैं. और तीसरा यीशु मसीह के शिष्य यूसुफ अरिमथाई के रूप में था करके हम देखते हैं. इस तरह से 3 यूसुफ जो बाइबल में हम पढ़ते हैं. आज जिसके बारे में हम यूसुफ के बारे में जानने वाले हैं वो यूसुफ जूना करार का जो याकूब का एक आखिरी बेटा था करके हम देखते हैं. और आखिरी बेटा, छोटा बेटा बहुत प्यारा था, इसलिए याकूब जिसे जी जान से प्रेम करता था करके हम देखते हैं. सारे बेटों को से बढ़कर इस छोटा बेटा यूसुफ से वो बहुत ही प्रेम करने वाला एक पिता था करके हम, इससे भाइयों के बीच में नफरत पैदा हुआ करके हम देखते हैं. सब भाई सोचते कि पिता हमसे ज़्यादा उस यूसुफ से प्रेम करता है करके वो छोटे बेटे के ऊपर नफरत करने लगा करके हम देखते हैं. बचपन से वो नफरत करते करते आ रहे थे करके हम देखते हैं, यहाँ तक कि उसे मार देने का एक प्लान बनाया करके हम देखते हैं. यूसुफ का एक अच्छी बात ये थी, परमेश्वर उसे एक टैलेंट दिया था. वो टैलेंट ये था कि वो स्वप्नों को देखना था और स्वप्नों को वो खुल के बताने वाला एक अच्छा टैलेंट जो है परमेश्वर यूसुफ को दिया था करके हम देखते हैं. तो हम देखते हैं कहानी में आगे हम देखते हैं जब उसके भाइयों मिलकर उसे मारने का सोच रहा था कि किसी ने एक भाई बेचारे मारने से क्या फ़ायदा, इस तरह से उन्हें क्या करते हैं, आखिरी उसे क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं, 20 सिक्कों के लिए बेच देते हैं करके हम देखते हैं. और इस तरह से वो पोटीफर के घर पे जाता है, वहाँ पर उस सेवक के रूप में रखता है. वहाँ पर हम देखते हैं पाप उसको पीछा कर रहा था करके हम देखते हैं. तो यूसुफ जो धार्मिक था, प्रभु के भय में था, उसने क्या किया मालूम, उस पाप से निकल कर दौड़ के चला जाता है और इस तरह से उसे झूठे इल्ज़ाम में उसे जेल में डाल देते हैं करके हम देखते हैं. और जेल में जब जी रहा था, जेल कैदी बनकर रहा था, तो परमेश्वर उसके जीवन में ऐसे अद्भुत कार्य किया, ऐसे मध्यस्थ होकर उसके जीवन को बदल दिया कि वचन हमें पढ़ते हैं उसके उत्पत्ति के 41वें अध्याय
41ನೇ ಸಂಧಿ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅದೇನಂತಂದರೆ, ದೇವರು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಫರೋಹ 2 ಕನಸುಗಳು ಆತ ನೋಡುವಂಥವನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. आ 2 सपने राजा फ़ारो देखता है करके हम देखते हैं, और उसने पूरे इजिप्ट में, मिस्र देश में हर एक बड़े बड़े ज्योतिषों को, बड़े बड़े पंडितों को बुलाता है. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಆತನ ಆ ಒಂದು ಕನಸುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು, ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದು ಆತನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಆತನ कप बेरर, राजा का जो प्याला पिलाने वाला था, प्याला पालक था, वो जो है वो कहता है कि जेल में एक व्यक्ति है, एक यहूदी है, वो तुम्हारे सारे सपनों को बारे में बताएगा करके कहता है. तब राजा उसे बोलते हैं ले आओ बोलता है, और तब यूसुफ आता है राजा के दरबार में. तब राजा अपने 2 सपन जब उसे बताता है, प्रभु की आशीष से, आत्मा से परिपूर्ण होकर यूसुफ उस सारे सपने की सच्चाई जब बताता है, राजा बहुत ही खुश होता है. वहाँ के रहने वाले सारे मंत्री भी बहुत खुश होता है. राजा खुश होकर उसे क्या कहता है कि तू मेरे राज्य में काम करेगा, और परमेश्वर उसे क्या कहता है, उसे बढ़ाता है करके हम देखते हैं. राजा फरो इतना खुश होता है कि परमेश्वर की आत्मा तुझ पर है, इसलिए मैं अपने इजिप्ट के इस देश को मैं तेरे हाथ में देता हूँ. तू इसकी प्रधान है, तू सब कुछ है, खाली नाम के लिए मैं राजा रहूँगा, लेकिन सब कुछ तू अपनी इच्छा प्रकार तू चला करके राजा अपने पूरे देश को, अपनी स्थिति को उसके हाथों में सौंप देता है करके हम देखते हैं. जब वो यूसुफ इस पदवी जब पाता है, वो केवल 30 साल का रहता है करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, कैसे परमेश्वर यूसुफ के जीवन में मध्यस्थ रहा करके हम देखते हैं. वो क्या था? कुछ नहीं था, एक जेल में कैदी के रूप में था करके हम देखते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन को बदल दिया करके हम देखते हैं. उस कुछ भी नहीं था, एक समय में उसने देश का एक प्रधान मंत्री के रूप में बनाकर उसे रखा करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर वो ऐसा परमेश्वर है, आपको शून्य से नंबर 1 करने वाला परमेश्वर है. यूसुफ को जीवन को हम देखते हैं, वो बहुत ही विश्वासी योग्य पर बेटा था करके हम देखते हैं. हमेशा वो भलाई करना चाह करके व्यक्ति था करके हम देखते हैं. वो कोई पाप ना करने वाला व्यक्ति था करके हम देखते हैं. अच्छे मन का था करके हम देखते हैं. अच्छे हृदय से वो जीने वाला था करके हम देखते हैं. यहाँ तक कि पिता पर हम देखते हैं वो अच्छे कार्य करने वाला व्यक्ति था करके हम देखते हैं. पाप से दूर भागने वाला व्यक्ति था, प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति वो यूसुफ था करके हम देखते हैं. इसीलिए परमेश्वर उसके जीवन को देखकर उसे क्या किया, मतलब उसे आशीष किया और उसके जीवन को एक उन्नत स्थान में लाकर खड़ा किया करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, हमारे जीवन में आज हम ये सोचते हैं, क्या प्रभु मुझे उठाएगा, क्या प्रभु मुझे अच्छा स्थान मान देगा, क्या प्रभु आज मुझे एक अच्छे जीवन देकर मुझे आशीष करेगा. जरूर वो आशीष करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें उठाने वाला परमेश्वर है, हमारी स्थिति को उठाने वाला परमेश्वर है, हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है. हमारे कष्टों में वो चुप नहीं बैठता, हमें क्या करता है, हमें ऊपर उठाते हुए हमें वो चमकाता है करके हम देखते हैं. यूसुफ के जीवन को कभी कोई सोचा नहीं कि वो एक दिन इजिप्ट के, मिस्र देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरे देश उसके इशारे पे चलेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उसे साबित किया. परमेश्वर जीवन मध्यस्थ होकर उन्हें वो आशीष किया करके हम देखते हैं. वही परमेश्वर को हम आराधना करने वाले वो लोग हैं, जो परमेश्वर ने यूसुफ के जीवन को शून्य से नंबर 1 बनाया, वैसे ही तुम्हारे जीवन को, हमारे जीवन को वो आगे बढ़ाता है, वो आशीष करता है, सुंदर रीति से अपने जीवन को वो आशीष करता है करके आपके जीवन को, आपके परिवार के जीवन को, आपके बच्चों के जीवन को सुंदरता देते हुए तुम्हें आगे बढ़ाता है करके
हम देखते हैं। प्रभु जैसे यूसुफ को उन्होंने ऊंचा उठाया, वैसे परमेश्वर आप सभी को ऊंचा उठाएं और जीवन में उन सारी बातों को पूरा करें जो बातें आपके दिल में, आपके मन में है। प्रभु इस वचन को आशीष करें। और तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर पौलुस के जीवन में प्रत्यक्ष होकर उन्हें आशीष किया करके हम देखते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट गॉड इंटरवेन इन द लाइफ ऑफ सेंट पॉल करके हम देखते हैं। ದೇವರು ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆತನನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। अब्राहम का जीवन, यूसुफ का जीवन बहुत ही विश्वासी जीवन लोग थे, अच्छे लोग थे, प्रभु के विश्वास में, प्रभु के भय में चलने वाले लोग थे। तो प्रभु का मध्यस्थ उनके जीवन में होकर उन्हें आशीष किया करके हम देखते हैं। लेकिन पौलुस का जीवन को हम देखते हैं, उसके प्रारंभिक जीवन जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, वो अच्छे व्यक्ति नहीं थे। ಆತನು ಕ್ರೈಸ್ತರನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। हम देखते हैं कि वो मसीहों को निंदा करने वाला, मसीहों को मारने वाला, मसीहों को जेल में बंदी बनने वाला वो बड़ा क्रूर व्यक्ति था करके हम देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे परमेश्वर जो बुराई करते उससे छोड़ देता है? नहीं, हमारा परमेश्वर प्रेमी प्रभु है। ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ। प्रभु परमेश्वर पाप से नफरत करता है, लेकिन पापियों से वो प्रेम करता है करके हम देखते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने साउल से यानी पौल से प्रेम किया करके हम देखते हैं। इसलिए एक दिन जब साउल दमस्कस रोड पे जब जा रहा था लोगों को बंदी करने के लिए, लोगों को मारने के लिए, मसीह लोगों को सताने के लिए, तब परमेश्वर का एक प्रकाश प्रभु उनके जीवन में मध्यस्थ किया करके हम देखते हैं। एक रोशनी भेजा करके हम देखते हैं, उसके ऊपर पड़ी करके हम देखते हैं। और इस तरह से प्रभु को उसने कौन है प्रभु करके बोलता है, तो मैं यीशु हूँ करके, तो मुझे क्यों सताते हो करके कहता है। परमेश्वर ने साउल के जीवन में मध्यस्थ करते हुए उसके जीवन को एक नई दिशा दिखाया करके हम देखते हैं, उसके जीवन को बदल दिया करके हम देखते हैं, उसकी सोच को बदल दिया करके हम देखते हैं, उसके रास्ते बदल दिया करके हम बदलते हैं, उसके जीवन के हर एक पहलू को परमेश्वर ने बदल दिया करके हम देखते हैं। एक समय वो क्या था, निंदा करने वाला था, उस निंदा करने के जगह पर उसे प्रभु के वचन को बताने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना करके हम देखते हैं। इस तरह से वो एक बहुत ही जिद्दी व्यक्ति था, लेकिन उसके जिद्दी को परमेश्वर निकाल कर एक दीनत्व में चलाया, एक हम्बल पर्सन बनाए करके हम देखते हैं। ದೇವರ ಆತನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ದೀನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ। बाइबल कहता है कि पौलुस ने सेवा किया करके हम देखते हैं, कितने कलीसियाओं को उसने बांधा करके हम देखते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं बाइबल में 14 पुस्तक उन्होंने लिखा है, रोमन से लेकर इब्रियों के पुस्तक पत्र जितने भी वो लिखे हैं वो पौलुस ने लिखा है करके हम देखते हैं। पौलुस कभी नहीं जाना कि जो मैं पत्र लिख रहा हूँ, जो मैं लेटर लिख रहा हूँ, ये ನಾನು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪತ್ರಗಳು ಇಡೀ ಲೋಕವು ಅದು ಓದುತ್ತದೆ ಅಂತಂದು पूरे संसार इस वचन को पढ़े, वो सोचा नहीं था, उसका ख्याल ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने इतनी अनोखा सेवकाई में पौलुस को उसने चलाया करके हम देखते हैं। ये कभी हुआ, तभी हुआ जब परमेश्वर उसके जीवन में मध्यस्थ होकर उसके जीवन को परिवर्तन किया। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन क्या है? ನೀನು ಎಂಥವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ? ಎಂಥ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆಯಾ कि आज भी परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर से नफरत करते हैं, प्रभु की आराधना नहीं करते हैं, प्रभु के वचन नहीं पढ़ते हो, प्रभु की प्रार्थना में नहीं बढ़ते हो, आत्मिक जीवन में ना होते हुए दूर जिंदगी जी रहे हैं, नाम के मसीह हो। अगर ऐसे हैं, आज भी परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।
ದೇವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತಿರುಗಿ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು बदलाइಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. हर समय हर पल प्रभु आपसे कुछ कहता है. गॉड इंटरवीन्स इन योर लाइफ. प्रभु आपसे कुछ बोलता है. क्यों ना आप एक पल के लिए अपने कान, अपने मन, अपने ध्यान उस वचन पे लगा. जब प्रभु आपको कुछ बोलता है वो आपके जीवन को बदल देगा करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, आज बहुत से बार हम परमेश्वर के वचन सुनते हैं, उसके अनादर करते हैं, उसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं. इसीलिए आज हम क्या हो गए, हमने प्रभु से दूर चले गए हैं. लेकिन प्रभु आज भी अपनी आंखें उठाते हुए, अपने हाथ फैलाते हुए वो देख रहे हैं. मेरा बेटा, मेरा बेटी, मैं आपकी रास्ता देख रहा हूँ. मैं आपके जीवन में आना चाहता हूँ. मैं आपको आशीष करना चाहता हूँ. इस तरह से परमेश्वर अपने ओर देखकर हमें वो आशीष देना चाहते हैं. मेरे प्रियो, ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. उसी प्रकार से ದೇವರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು आशीर्वाद ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. आज जो वचन हमने पढ़ा है रोमा उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन हम पढ़ते हैं. देखिए क्या लिखा है. परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा करके कहता है. जब हम पापी में थे तभी मसीह हमारे लिए मरा करके हम देखते हैं. हम पापी थे, पाप में डूब रहे थे, पाप में मर रहे थे. ऐसे में परमेश्वर मध्यस्थ होकर हमारे पापों को बचाने के लिए, हमें नया जीवन देने के लिए वो इस संसार में मध्यस्थ हुआ. वो प्रकट होकर हमारे लिए वो सूली पर चढ़ा गया करके हम देखते हैं. मेरे प्रियो, उस परमेश्वर जिसने हमारे जीवन को मध्यस्थ देते हुए हमारे जीवन को पाप के रास्ते में जाने से अच्छा स्वर्ग की ओर जाने में हमें प्रेरित किया है करके हम देखते हैं. ऐसे ही आज मेरे प्रियो, आज हम इस बात को जान लें. ದೇವರು ತಾನು ತನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ನಾವು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ದೇವರೇ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ದೇವರೇ. कितने सुंदर बातें आपने हम सभी को बताया कि आप हमारे जीवनों में मध्यस्थ होकर हमें अनुदिन जीवन में आप बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं और हमें आशीष कर रहे हैं पिता प्रभु. आपके वचन में हम ये भी देखे हैं कि किस तरह से आपने अब्राहम के जीवन को तूने मध्यस्थी किया, आशीष किए. किस तरह से यूसुफ के जीवन में मध्यस्थ होकर उन्हें आशीष ऊंचाई पर आपने खड़ा किया. यहाँ तक पौलुस जो अन्य था, जो आपके विरोधी था, लेकिन फिर भी पिता आप अपने उसके जीवन में मध्यस्थ होकर उसके जीवन को बदल कर तेरे सेवकाई में उन्हें बहुरीति से इस्तेमाल किया. वैसे पिता प्रभु जी, आज हमारे जीवन में आप मध्यस्थ करते हुए पिता हमारे जीवनों को चला पिता प्रभु जी. अब तक आपने चलाए हैं, आगे भी चलाते हुए पिता प्रभु जी हम सब आपके विश्वासी बेटा बेटियां बनने में तू हमें आशीष कर. धन्यवाद करते हैं पिता उन सारे आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी और अपना पुत्र, एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया ताकि उसके मरने से, कुसूली पर मरने से ही, उसके मध्यस्थ होने से ही हमारे पापों की परिहार हुई है पिता प्रभु. इस बात को हम ना भूलें और हम हमेशा हमारे यीशु मसीह पे विश्वास करते हुए आपके सम्मुख में उन सारे आशीषों को मांगते हुए, अनुग्रह
प्राप्त करने में तू हमें आशीष करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं ದೇವರೇ. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಾಲು ಮತ್ತು ಬೇತೇಲ್ ಸಭೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಿನ ಮುಂದೆ ತಂದು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲಾರದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯಗಳು ನೀನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನವು, ನಿನ್ನ ಐಕ್ಯತೆ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರು ಆಗಿದೆಯಾ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಂಥ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು ನಾವಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಯವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಸಭೆಯ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ವಾಸಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು. ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗುವಂತೆ, ಯೋಸೇಫನ ಹಾಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ನೀಡು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೇಕು ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇದುವರೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿರುವಂಥ ದೇವರು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸಭೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್, ನರ್ಸಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ದೇವರೇ, ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ಬೇಗನೆ ಬರುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಗಳು ಬರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ನೇತರು ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮಾತನಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರನ್ನು, ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಂದ ದೇವರೇ ಅವರನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸ್ವಾಮಿ, ಇಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ನಡೆಸಿದೆಯಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡೆಸು. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೇವರೇ, ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು, ನಿನ್ನ ಗಾಯ ಹಸ್ತವು ಚಾಚಿ ಅವರು ಮುಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. ಏನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳೋ ದೇವರೇ, ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ದೇವರಾಗಿದೆಯಾ. ಈಗೋ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ನೀನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂತಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ದೇವರೇ, ನನ್ನನ್ನು, ನನ್ನ ಸಭಿಕರನ್ನು, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಬಂಧುಕರನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೇವರಿನ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು. ಘನ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ದಿನಮಾನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ. ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ. ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದ ನೆರವೇರುವ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಾದರಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸದೆ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲವು ನಿನವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ತಂದೆ, ಮಗ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ತ್ರೈಕ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಕೂಡಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಆಮೇನ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕಾಪಾಡಲಿ. ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.